Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all fine. Today we will discuss a very important lecture, that is population. Population को डिस्कस करने से पहले देख लीजिए, जो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है किसी भी स्पीशीज का, इट कैन नॉट एग्जिस्ट. Single individual of any species cannot exist alone, but individuals always exist in groups. They occupy some particular area for a particular period of time. This group of individuals of a species occupying a particular area for a particular period of time, this group of individuals is called as population. तो हम कैसे करेंगे डिफाइन पॉपुलेशन को? ओके, तो पॉपुलेशन का मकसद क्या है असल में? जो इंडिविजुअल्स डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रुप्स. ओके, क्या है पॉपुलेशन? शाबाश, पॉपुलेशन में मुझे बोलो. पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. Group of individuals of same species occupying an area for particular time. Is called as population. शाबाश, क्या लिखा आपने? Group of individuals of same species occupying an area for particular time is called as population. Group of individuals of same species, एक ही species होनी चाहिए, एक ही species के individuals होने चाहिए. For example, humans एक species है. Group of humans at some particular space, at some particular place, this is called as human population. For example, कोई desert है, वहां पे rats है. It is the group of individuals of the same species, rats. Okay, there's a rat population in the desert. Or also we say population of this population of tigers in some forest. That is the same species involving. Okay, individuals of same species are involved in forming a group, what we call as population. Okay, now study of human population is called as demography. Study of human population is called as demography. What's demography? Demography is the study of human population. Study of human population. इसकी different aspects. ये human population कैसे grow होती है, इसका pattern क्या है? All aspects are obviously the study of human population is called as demography. Very important. Now, every year in the World Population Day is celebrated. Okay, World Population Day is celebrated every year. When? July 11 July is celebrated as the World Population Day. Okay, now देख लीजिए, ये असल में पॉपुलेशन पे कौन सा इफेक्ट आता है और इंडिविजुअल पे कौन सा इफेक्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्स्ट बुक का. देख लीजिए, अगर एनवायरमेंट चेंज हो गया, if environment changes, the individual basically changes itself. It brings some adaptations. ये अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाते हैं जिनकी मदद से it's able to cope up with the changing environment. Means with change in environment, individual is able to change itself to cope up with the changing environment. But we have natural selection. Natural selection always operates on population. It always operates at the population level. An individual has to cope up with the change environment. Environment change हो गया, individual को ही cope up करना है. But जो natural selection का जो pressure आता है, जो हम evolution में पढ़ते हैं natural selection, Darwin ने जो concept बोला, this natural selection always operates at the population level, not to the single individuals. Okay, क्या है? Individuals cope up with the, हम क्या बोलेंगे, बेहतर लिखेंगे, हम डिफरेंट अंदाज में इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन. बेहतर रहेगा. Natural selection
natural selection operates at population level. Natural selection operates at population level. Okay, natural selection का असर किस पे आता है? पॉपुलेशन लेवल. फिर जो नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा तो पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल्स है, दे विल ब्रिंग सम चेंजेस, दे विल ब्रिंग सम एडेप्टेशंस, और जो यूजफुल एडेप्टेशंस होंगे तो अल्टीमेटली वो सिलेक्ट हो जाएंगे. दे विल बेसिकली फ्लोरिश. और दोज ऑर्गेनिजम्स जो नए मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे चेंज एनवायरमेंट के साथ, दे विल अल्टीमेटली पेरिश. इंडिविजुअल्स को असल में करना पड़ता है कोप अप विद चेंज एनवायरमेंट, बट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है एट द पॉपुलेशन लेवल. ओके, अब देख लीजिए पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, जिनको हम थोड़ा स्टडी करेंगे. देख लीजिए हम क्या देखेंगे? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मीन्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉपुलेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम देखेंगे वन बाय वन. लेकिन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिलोंगिंग द पॉपुलेशन, नॉट टू द इंडिविजुअल. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये पॉपुलेशन को करते हैं बेसिकली, आई मीन दे बिलोंग टू द पॉपुलेशन, नॉट टू द सिंगल इंडिविजुअल. अब देखेंगे ये कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉपुलेशन को ये करते हैं कैरेक्टराइज, एक सिंगल इंडिविजुअल पे ये कैरेक्टर जो है अप्लाई नहीं हो पा रहे. कौन कौन सा कैरेक्टर हम देखेंगे. पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स belong to population, not to single individual. Not to single individual. मैं आपको समझाऊंगा मतलब क्या है इसका. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू पॉपुलेशन, नॉट टू सिंगल इंडिविजुअल. जिस तरह एन इंडिविजुअल कैन हैव बर्थ और डेथ. एक पॉपुलेशन में होते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट. एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल का सेक्स हो सकता है मेल और फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर वी हैव सेक्स रेशियो, परसेंटेज, कितने हैं मेल्स कितने हैं फीमेल्स, वही हम देखेंगे. तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू पॉपुलेशन. इट इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप, नॉट टू द सिंगल इंडिविजुअल. अंडरस्टैंड? नाउ कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है हम देखेंगे वन बाय वन. पॉपुलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है. पॉपुलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है. पहला जो है नंबर ए, number first attribute of population, that is what we call as population size. Population size and density. Population size and population density. Population size and population density, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. n मीन्स पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन, दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं n से ही. पॉपुलेशन साइज क्या है? एज नेम इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं एक पॉपुलेशन के अंदर. दिस पॉपुलेशन साइज रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल. आप देखेंगे नीचे पॉपुलेशन साइज क्या है. पॉपुलेशन साइज मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, number of individuals present in population. Number of individuals present in population. Total number of individuals एक population में कितने होंगे? That's called as population size. It is normally represented by n. Population density के लिए भी हम n ही इस्तेमाल करते हैं. Now, number of individuals present in population is called as population size. Population size बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा पॉपुलेशन साइज, एग्जाम्पल में पॉपुलेशन साइज के बारे में. पॉपुलेशन साइज कैन बी एज लो एज, इसके लिए वेरी लो, लेस देन 10 इंडिविजुअल्स. पॉपुलेशन साइज इतना कम हो सकता है, एक जगह पे इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत कम हो सकता है. लेस देन 10, फॉर एग्जाम्पल लेस देन 10 फॉर इनके लिए साइबीरियन क्रेन्स. साइबीरियन क्रेन्स क्या है? दिस आर बर्ड्स. कहा? साइबीरियन क्रेन्स इन बारकपुर वेटलैंड्स.
बारहपुर वेटलैंड। बारहपुर वेटलैंड्स कहाँ है? बारहपुर नेशनल पार्क वेटलैंड्स या राजस्थान के अंदर है, इस तरह राजस्थान में। ओके, लेस देन 10 पॉपुलेशन साइज कैन बी एज लो एज लेस देन 10 फॉर साइबेरियन क्रेन्स इन बारहपुर वेटलैंड्स, और इट कैन बी वेरी हाई, इट कैन बी अबाउट, it can be in millions, it can be in millions, 1 million is equal 10 lakh, it can be in millions. For example, in case of Chlamydomonas, Chlamydomonas क्या है? ये एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, एक प्रोटिस्टन है कि एल्गी में भी हम इसको कभी कभार पढ़ते हैं, हालांकि ये प्रोटिस्ट है। Chlamydomonas एक प्रोटिस्ट है, इसको हम ग्रीन एल्गी में भी पढ़ते हैं कभी कभार। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इसको डिफरेंट अंदाज में प्लेस किया है डिफरेंट ग्रुप्स में। एनीवे, इट कैन बी इन मिलियंस। फॉर एग्जांपल, Chlamydomonas इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर अगर हम वाटर का सैंपल लेंगे, उसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन कितनी होगी। Chlamydomonas कैन क्रॉस मिलियंस। With its population size, basically it varies. It can be as low as less than 10 for Siberian cranes, these birds, in Bharatpur wetlands at any period of time in a year, or it can be in millions, for example in case of Chlamydomonas in a pond. Okay, एक मसला देखो, ये नंबर हमेशा मैटर नहीं करता है। नंबर कितना है, नंबर कितना है, नंबर असल में यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि इंडिविजुअल्स का नंबर पॉपुलेशन के अंदर ये तो एक्चुअली पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करता है, लेकिन अगर हम यहां देखेंगे पॉपुलेशन साइज देखो, नंबर यहां पे मैटर ज्यादा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरिया है, एक फॉरेस्ट है हमारे पास, तो वहां पे क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स, 20 प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स है, 20 प्लांट्स है हमारे पास, किसके? पार्थीनियम की। यू नो पार्थीनियम, पार्थीनियम कैरेट ग्रास हम इसको बोलते हैं, पार्थीनियम को हम बोलते हैं नाम कैरेट ग्रास। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट जो हमारे पास कैरेट होता है, कैरेट का साइज का होता है नॉर्मली, इसी के साथ मिलता है कैरेट ग्रास, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी इनकी मिलती है। 20 इंडिविजुअल्स हमारे पास है एक जगह पे, किसके? पार्थीनियम के। एंड वी हैव सिंगल इंडिविजुअल, वी हैव वन इंडिविजुअल ऑफ banyan tree, you know, the largest tree in the world, सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, वन banyan tree। अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज, इसका पॉपुलेशन साइज 1 है, इसका पॉपुलेशन साइज 20 है। अब देखो, इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन साइज इन्हीं का ज्यादा है, लेकिन अगर हम देखेंगे स्पेस, एरिया, रोल इसका ज्यादा है, इसने तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई किया है एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, और ये कीस्टोन स्पीशीज है, यही डिटरमाइन करेगा इनकी पॉपुलेशन को। तो यहाँ पे अगर हम नंबर देखेंगे, नंबर इज समवट हियर मिसलीडिंग, तो यहाँ पे हम लेते हैं कुछ जगहों पे पॉपुलेशन साइज हम रिप्रेजेंट करते इन टर्म्स ऑफ द बायोमास, इसका टोटल मास कितना है, इसका टोटल कवर कितना है, मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। समटाइम्स दिस नंबर इज समहाउ कंफ्यूजिंग एंड वी यूज अ रिलेटिव टर्म दैट इज बेसिकली एज population biomass. We use term biomass, or we say percentage cover or cover, percent cover, इसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है। ओके, और अगर कहीं पे पॉपुलेशन का साइज काउंट करना बड़ा मुश्किल होगा, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, तो काउंट करना बड़ा मुश्किल है नंबर, बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है, इनको काउंट करना ये कॉलोनी के अंदर कितने हैं, तो वहां पे हम टर्म करते हैं इस्तेमाल relative density. We use term relative density where the number of individuals are very difficult, rather impossible to determine. एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स है, हम फिर करते हैं टर्म यूज रिलेटिव डेंसिटी, कहां पे नंबर ज्यादा हो सकता है, कहां पे कम हो सकता है, हम रिलेटिव डेंसिटी टर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज में हमने क्या बोला, पॉपुलेशन साइज सिंपली मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। This population size can be as low as 10 in case of the Siberian cranes in Bharatpur wetlands, or it can be as high as millions in case of Chlamydomonas pond. Okay, now this population size means the number is somehow misleading in some cases. For example, if we have 20 individuals of Parthenium carrot grass somewhere and we have single banyan tree, here it looks like that banyan tree has very little population size, but the percentage cover, the biomass, is more in case of banyan tree as compared to these hundreds of these basically Parthenium carrot grass plants. So here we use the term biomass or percent cover for the population size. Okay.
And sometimes when the population size, number of individuals is very difficult to determine, in those cases we use the term relative density. किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये नॉर्मली हम बैक्टीरिया पॉपुलेशन के इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज पॉपुलेशन साइज. समझ आ रहा है? पॉपुलेशन साइज सिंपली क्या रखेंगे यार, इट इज रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर कितना है. ये हो गया पॉपुलेशन साइज. एक और चीज है पॉपुलेशन डेंसिटी. क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? Density means, population density means it refers to number of individuals per unit area or per unit volume. याद रखिएगा क्या है हमारे पास population density. What's population density? It refers to number of individuals. It refers to number of individuals per unit area. किनके लिए पर यूनिट एरिया? लैंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए. और जो एक्वेटिक होंगे उनके लिए एरिया नहीं, हम वॉल्यूम लगाएंगे. क्या? पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम. पर वॉल्यूम में हम देखते हैं जिस तरह अगर हम एरिया देखेंगे, एरिया के लिए हम देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर भी, पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम देख सकते हैं अगर हम यूनिट कम करेंगे. और यहां पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम देख सकते हैं पर क्यूबिक लीटर फॉर एग्जांपल, पर क्यूबिक लीटर या पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए. ओके, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन साइज मींस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया हमारी कंट्री जो है इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो भारत तो 125 करोड़ का देश है, इसमें 1.37 टू बी मोर प्रिसाइज, तो 1.37 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, मीन्स 1.37 बिलियन individuals, these humans, they live in India. It is the second most populous country, China being the first one. It has a population size of 1.43. चाइना का है 1.43 बिलियन, 1 अरब और 43 करोड़. तो इंडिया का है 1 अरब और 37 करोड़. तो ये पॉपुलेशन साइज की हम बात करें. चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री फॉर बाय इंडिया. नाउ दैट्स पॉपुलेशन साइज, इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल. बट पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है पर यूनिट एरिया में. पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट एरिया किन के लिए? पर यूनिट एरिया फॉर लैंड ऑर्गेनिजम्स, फॉर लैंड ऑर्गेनिजम्स, लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड पर यूनिट वॉल्यूम किन के लिए? फॉर एक्वेटिक, यानी कि जो पानी में होंगे, aquatic organisms, plants and animals. ठीक है? Okay, this is number of individuals per unit area or per unit volume. This is what we call as population density. फिर population density जो है, population density हम दो तरीकों से आइडेंटिफाई करते हैं. एक हो गया, अगर मैं आपको बोलूं population density. population density जो है ये इसके दो किस्में हैं, दो टाइप से पॉपुलेशन डेंसिटी के. वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड एज क्रूड डेंसिटी. क्या बोलते हैं नाम? क्रूड डेंसिटी. क्रूड डेंसिटी. अनदर इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड डेंसिटी. रियलाइज्ड डेंसिटी, इकोलॉजिकल और रियल. बहुत सिंपल है. क्रूड डेंसिटी मीन्स इट इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस. टोटल स्पेस कितनी है अवेलेबल और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं. डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, वेदर इट्स ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिजम्स और नॉट. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया का टोटल एरिया, हम देखें टोटल इंडिया का एरिया कितना है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करेंगे, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया कितने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एरियाज है इनहॉस्पिटेबल. फॉर एग्जाम्पल कुछ डेजर्ट्स है हमारे पास, जो था डेजर्ट राजस्थान के अंदर, वहां पे तो ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं. एंड एट द टॉप ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, यू नो, वी हैव हियर इन द वैली, जो पीर पंजाल एरिया है हमारा यहाँ पे गुलमर्ग में, जो अफरवट एरिया है, तो वहां पे इंडिविजुअल्स रहते नहीं है, लेकिन हम टोटल एरिया काउंट करते हैं. फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने, टोटल एरिया हमारे पास कितना है. क्रूड डेंसिटी. लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी में, यहाँ हम लेते हैं वही एरिया हम काउंट करते हैं जहां पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे हम करते नारीफाई वो वाला एरिया. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे एनिमल्स फॉर ह्यूमंस की बात करेंगे वहां ह्यूमंस नहीं पाए जाते. एट द टॉप ऑफ दीज दीज ग्लेशियर्स एंड ऑल दीज माउंटेन्स, ये भी हम करेंगे इसमें इग्नोर, ये हम करेंगे इसमें माइनस.
Okay, what is this true density now? It is the density, एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, it is the density per unit of total space. It is the density per unit of total space. Total number of individuals to the total area. भारत के अंदर total number of individuals कितने हैं, total area कितना है, that is density per unit of total space. But ecological realizer जो असल में है, it is the density per unit of habitat space. Per unit of habitats means the place actually occupied by the organisms. Habitat जो उन्होंने जगह actually occupy की है. तो crude density per unit of total space, and ecological or realized density is density per unit of habitat space, the area actually occupied by the population. Okay, this is what we call as crude density and ecological density. अब देख लीजिए डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं. एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल एक खास एरिया में कितनी डेंसिटी है, ये बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना, आइडेंटिफाई करना. हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. दिस डेंसिटी कैन इनडायरेक्टली बी मेजर्ड. दिस डेंसिटी इज नॉर्मली इनडायरेक्टली मेजर्ड. डेंसिटी को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं दो तरीकों से. डेंसिटी इज इनडायरेक्टली मेजर्ड बाय टू मैकेनिज्म, दो तरीकों से. एक मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल आपको बोलना है एक लेक, फर्स्ट हमारे पास डल लेक है. इस डल लेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने होंगे, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि डल लेक में कितने फिश, इसका तो एरिया बहुत ज्यादा है, 27 स्क्वायर किलोमीटर राउंड अबाउट. ओरिजिनल जो इसका एरिया था अब तो रिड्यूस हो चुका है. लेकिन मसला है कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में होंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, क्या डेंसिटी होगी. तो ये बहुत मुश्किल है बोलना ऐसे. तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लगाते हैं ट्रैप. हम ट्रैप जो जाल लगाते हैं फिशरमैन, तो हम देखते हैं एक जाल के अंदर, एक ट्रैप के अंदर एक बार जो जाल लगाया, इसने नेट लगाया, एक जाल के अंदर कितने फिशेस फंस जाएंगे. अगर बहुत ज्यादा फिशेस फंस गए, इसका मतलब होगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन वहां ज्यादा है. अब कुछ नहीं आया मीन उसमें बहुत ज्यादा कम होगा. समझा रहा है? तो हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ ओके, इन केस ऑफ पॉन्ड्स या लेक्स, इन केस ऑफ लेक्स, density is indirectly calculated by, density is indirectly calculated in case of lakes, density is indirectly calculated by number of individuals caught per trap. In case of lakes, density is calculated indirectly by number of individuals caught per trap. एक ट्रैप के अंदर कितने इंडिविजुअल्स फंस जाएंगे. अगर ज्यादा फंस गए हम देखेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है, कम होगी तो अल्टीमेटली कम होगी, रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करेंगे. या इवन एक फॉरेस्ट के अंदर कितने टाइगर्स होंगे, बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि टाइगर को कैलकुलेट ये पूरा नंबर देखना कहाँ पे कौन है ये नजर नहीं आ सकते, क्योंकि कभी कभार ये होते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे इंसान वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये है कि नहीं. तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारे कंट्री के अंदर टाइगर सेंसस है, ओके, टाइगर सेंसस, हम उनके पग मार्क्स देखते हैं. पग मार्क्स जो उन्होंने वो निशान लगाए होंगे मिट्टी पे, उनको हम और पैलेट्स को, फीकर पैलेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं. उस बेस पे हम सेंसस इनका बेसिकली करते हैं. टाइगर सेंसस मींस काउंटिंग, सेंसस इंडिविजुअल को काउंट करना. लेकिन टाइगर सेंसस जो है इनको काउंट करना वन बाय, जिस तरह हम करते हैं हर 10 साल के बाद, जो 2011 में हो गया था लास्ट सेंसस इन इंडिया, अब 2021 में इस साल हो जाएगा. लेट रहा, आज कोविड चल रहा है तो मे बी ये स्टार्ट हुआ होगा. तो लेकिन मसला है अब कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा. 2001 में पहला सेंसस था जो हम मतलब इस सदी की बात कर रहे हैं, 2001 में, फिर 2011 में, अब 2021 में एक और सेंसस आ जाए. सेंसस में हम हर एक इंडिविजुअल की काउंट करते हैं, एक फैमिली में कितने इंडिविजुअल्स है, किसकी क्या पढ़ाई, एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल कितने, बच्चे कितने, सारा कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है. लेकिन टाइगर्स के लिए सेंसस पॉसिबल, टाइगर को हम नहीं जाए, टाइगर बोलो आपका सेक्स क्या है, आपका मेल हो फीमेल हो, कहाँ रहते हो, पढ़ाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है. टाइगर्स के अंदर जो सेंसस है दैट्स इनडायरेक्टली बेसिकली कैलकुलेटेड. ओके, टाइगर सेंसस in our country, in our national parks and these what we call as sanctuaries even. Okay, even birds preserves we say. Tiger census in our national parks is based on इस पे पग मार्क्स, जो निशान होंगे मौजूद सरफेस पे.
is based on pug marks. याद रखिए, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, pug marks and fecal pellets. ये पॉइंट याद रखो, टेक्स्ट बुक का है ये. Tiger census in our national parks is based on pug marks and fecal pellets. This is all about population size and density. तो हमने क्या जाना इसमें? Population size means number of individuals present in a population. It can be very low in case of Siberian cranes. It can be very high in case of Chlamydomonas in a pond. Okay. Population density is the number of individuals per unit area or per unit volume. Per unit area for land animals, per unit volume for aquatic animals, or we say plants as well. Okay. Density के दो किस्में हैं. One is called as crew density, another is ecological realizer. Crew density means density per unit of total space, and ecological means density per unit of habitat space. Okay. This is the first attribute, first character of population. That's population size and population density. अब दूसरा जो है नंबर B, that's what we call as sex ratio. क्या है? That is sex ratio. Sex ratio में क्या है? An individual can, देखो ना, मैंने अभी आपको बोला पहले जब हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे, मैंने बोला आपको कि एक पॉपुलेशन के ये कैरेक्टर्स थे. These characters does not belong to the individual. तो यहाँ एक इंडिविजुअल का सेक्स हो सकता है मेल या फीमेल. An individual can be male or female, but the population has sex ratio. An individual can be male or female, but population has sex ratio. Sex ratio क्या है? Sex ratio means number of females per 1,000 males. Number of females per 1,000 males. This is what we call as sex ratio. Sex ratio यही है, number of females per 1,000 males. Normally जो दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंदर फीमेल्स और मेल्स का जो सेक्स रेशियो इट इज 1:1. जितने मेल्स है दुनिया के उतना ही फीमेल्स होते हैं. डिफरेंट स्पीशीज की अगर बात करें, ह्यूमंस की बात, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली है. दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट यही है, 1:1 ऑलमोस्ट है. जितने मेल है उतने ही फीमेल है. लेकिन मसला क्या है यहाँ देख लीजिए. भारत के अंदर अगर देखेंगे 2011 का सेंसस, उस हिसाब से एज पर 2011 सेंसस जो भारत में किया गया, यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है? इंडियन सेक्स रेशियो, भारत के अंदर सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने पर 1,000 मेल्स के लिए, तो वो है 940. एग्जैक्ट नंबर है 943. एनीवे 940 ओके. 940 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स. मीन्स हमारे पास मर्द ज्यादा है ओवरऑल इंडिया के अंदर. लेकिन फिर अगर हम देखें डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेक्स रेशियो है. सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो है केरला का सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है. दे हैव अबाउट 1080 दीज फीमेल्स पर 1,000 मेल्स. अब उनका सबसे हाईएस्ट है. और हरियाणा का सबसे लावेस्ट है, इट्स अराउंड अबाउट 880. तो उनका सबसे कम है, हरियाणा का सबसे कम है. ओके, हरियाणा का सबसे कम है, दैट्स अबाउट 880 के अराउंड है उनके फीमेल्स पर 1,000 मेल्स. ओके, व्हाट इज सेक्स रेशियो नाउ? सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स. ओके, सेक्स रेशियो एट्रीब्यूट है किसका? पॉपुलेशन का. एन इंडिविजुअल कैन बी मेल और फीमेल, बट a population has sex ratio, means number of females per 1,000 males. Normally sex ratio is 1:1 in most of the species in the world. Normally ही होता है. But as per Indian census 2011, that's the recent census जो हमारे पिछले इस दिहाई में हो गया था, तो उस हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से we have sex ratio in India 940 females per 1,000 males. Means मर्द ज्यादा है, तकरीबन 60 मर्द ज्यादा है पर 1,000 फीमेल्स को. ओके, केरला 1080, that means 1,000 से ज्यादा. Kerala has highest sex ratio 1080 females per 1,000 males, and Haryana has the lowest, around about 880 के अराउंड इसका है. ओके, दिस इज सेक्स रेशियो. ये दूसरा एट्रीब्यूट था. अब देखेंगे तीसरा एट्रीब्यूट. तीसरा एट्रीब्यूट जो है दैट्स व्हाट वी कॉल एज बर्थ रेट. क्या बोलते हैं नाम? बर्थ रेट. इसको हम कभी कभार बोलते हैं नेटिलिटी रेट भी. ठीक है, तो इसको हम कभी कभार बोलते हैं नेटिलिटी रेट भी.
नेटिलिटी रेट। पहले सुनो नेटिलिटी का मतलब क्या होगा, फिर हम देखेंगे नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट। ओके, देखो फिर से मैं बोलूंगा, these attributes belong to population, not to the individual. An individual can be male or female, it can have sex male or female, but population has sex ratio. An individual can have birth or death, it can have birth or death, but a population has birth rates and death rates. क्या मतलब है बर्थ रेट का मतलब, पहले सुनो नेटिलिटी का मतलब क्या हो गया। नेटिलिटी मीन्स it refers to the number of individuals that are added to the population by the existing individuals. एक पॉपुलेशन के अंदर कितने नए इंडिविजुअल जन्म लेते हैं, वो जन्म कैसे लेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स है उन्हीं की रिप्रोडक्शन की वजह से ऐड कितने हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन की वजह से इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में। दैट्स व्हाट वी कॉल एज नेटिलिटी। ओके, नेटिलिटी हम देखेंगे नेटिलिटी या हम बोलेंगे बर्थ रेट अदरवाइज। ओके, number of individuals added to population, number of individuals added to population by existing individuals through ये हो सकता है through reproduction, through different reproductive strategies we say, through reproduction, ये किस मदद से हो सकता है, थ्रू रिप्रोडक्शन। इट कैन बी बाय मीन्स ऑफ बर्थ, ये बर्थ ले सकता सीधे, या बाय मीन्स ऑफ हैचिंग, जो ये बर्ड से इनके एग्स हैच होते फिर नया इंडिविजुअल आ जाएगा, और इन केस ऑफ प्लांट्स इट कैन बी ड्यू टू जर्मिनेशन एटसेट्रा। Okay, number of individuals added to the population by the existing individuals through reproductive strategies. So different reproductive strategies, क्या like birth, like hatching in case of egg-laying animals, or we can say germination in case of plants. को individuals कितने add हो जाएंगे population के अंदर, this is what we call as nativity। क्या बोलते हैं हम, nativity। लेकिन हमेशा nativity कैलकुलेट या birth rate हम बोली थे, nativity rate बोलो, नेटिलिटी रेट और बर्थ रेट एक ही चीज है। नाउ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने आएंगे वजूद में पर कैपिटा, याद रखिएगा, बर्थ रेट और नेटिलिटी रेट इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड, बर्थ रेट्स और नेटिलिटी रेट क्या है, ऑलवेज कैलकुलेटेड पर कैपिटा, ऑलवेज कैलकुलेटेड पर कैपिटा। समझाऊंगा ये मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलवेज कैलकुलेट पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, कैपिटा मीन्स पर्सन, पर पर्सन ही कैलकुलेट किया जाता है, पर इंडिविजुअल कैलकुलेट किया जाता है बर्थ रेट या नेटिलिटी रेट। ऑलवेज रिमेंबर दीज बर्थ रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन पर इंडिविजुअल। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ये बर्थ रेट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉन्ड है, क्या है ये, पॉन्ड एक लेक, एक वाटर बॉडी एक है हमारे पास। ओके, इसमें क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स अगर देखेंगे, हमारे पास एक पॉन्ड है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स, जो लोटस है निलंबो लोटस, ओके, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस जो इसमें नंबर ऑफ लोटस प्लांट जो है, फॉर एग्जांपल वो है 20, नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स कितने हैं 20। फॉर एग्जाम्पल एक साल में हम बात करेंगे, यहाँ पे करके मैं देखूंगा 2020 में इसमें थे 20 लोटस प्लांट्स। एक पॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स इन 2020 टू 2020 में कितने थे, नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड वेयर 20। नाउ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे बर्थ रेट आ गई, इन्होंने रिप्रोडक्शन की अल्टीमेटली एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल 8 इंडिविजुअल ऐड हो गए, तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स जो अब है 8 इंडिविजुअल फॉर ऐड हो गए, अब कितने 8 इंडिविजुअल ऐड हो गए, 2021 में, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बन गए 28। अब देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा बर्थ रेट, यहाँ पे नेटिलिटी रेट, तो बर्थ रेट कैसे आप कैलकुलेट, बर्थ रेट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ देखो एक साल के अंदर पर यूनिट टाइम,
Number of individuals added per unit time is called as birth rate. Number of individuals added to a population per unit time. Per unit time ये per month भी हो सकता है, per year भी हो सकता है, per week भी हो सकता है छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, तो क्या है बर्थ रेट? क्या है बर्थ रेट? विल बी हियर. ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ऐड हो गए? 8 ऐड हो गए. 8 हो गए ऐड. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे पहले कितने इंडिविजुअल थे टोटल? वो 20 थे, डिवाइड बाय 20. तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ऐड हो गए. नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडिड टू द टोटल साइज जो ओरिजिनली था नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो थे 20 हमारे पास. तो आपका अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 0.4. 0.4 क्या 0.4 में लिखूं यहाँ पे. इट इज 0.4 लोटस प्लांट्स. 0.4 लोटस पर. ओके, 0.4 इंडिविजुअल ऐसे लिखेंगे. 0.4 इंडिविजुअल्स. 0.4 इंडिविजुअल्स पर लोटस पर ईयर. हमने यहां पे ईयर लिया 2020 से 2021. नेटिलिटी रेट आपको कैलकुलेट करने हैं. बर्थ रेट आपको कैलकुलेट. बर्थ रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. वो क्या है बर्थ रेट. यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर एडेड? 8. तो टोटल साइज क्या था इसका? It was 20. Original size was 20. 8 divided by 20 is equal to 0.4 individuals are added per lot. Okay, by each lotus plant per year. तो हर साल एक लोटस प्लांट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.4 इंडिविजुअल इट इज एडिंग. ओके, एक परसेंटेज की बात है यहाँ पे. अब देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला ना ऑलवेज बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड पर कैपिटा पर पर्सन. यहाँ पे देखो 20 लोटस प्लांट्स ने 8 इंडिविजुअल्स को ऐड किया. तो एक का कितना हिस्सा है? 8/20. दैट मींस 0.4 इंडिविजुअल्स एक लोटस प्लांट एक साल में ऐड कर रहा है. दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट बर्थ रेट. तो बर्थ रेट क्या आप लिखेंगे? व्हाट्स बर्थ रेट? बर्थ रेट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. देखो बर्थ रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडिड टू पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम हो सकता है पर वीक भी, पर मंथ भी, और इट कैन बी पर ईयर इन केस ऑफ आई मीन बिग ऑर्गेनिजम्स, these larger ones. Okay, for small we can use per week as well. Number of individuals added per unit time is birth rate. Is birth rate. तो birth rate हम कैसे कैलकुलेट करें आपने जाना. Okay, this is all about birth rate. Now, एक और जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, नंबर 4th, number D, that's called as death rate. हम इसको लिख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट भी. मोर्टेलिटी रेट पहले सुनो, ये मोर्टेलिटी क्या है? नेटिलिटी क्या हमने बोला? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ऐड हो रहे एक पॉपुलेशन के अंदर बाय मीन्स ऑफ बर्थ, बाय मीन्स ऑफ हैचिंग, बाय मीन्स ऑफ जर्मिनेशन. तो मोर्टेलिटी क्या है? इट रेफर्स टू मॉर्टल मरना. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने मर रहे हैं पॉपुलेशन से. ओके, इट रेफर्स व्हाट्स मोर्टेलिटी? मोर्टेलिटी मींस नंबर ऑफ, मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूं. मोर्टेलिटी मींस नंबर, मोर्टेलिटी रेट नहीं, मोर्टेलिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that are lost from population. किस वजह से? ड्यू टू नेचुरल डेथ, या हम बोलते ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू डिजीजेस. ओके, इस वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल डेथ और ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू what we call as diseases, due to diseases और नेचुरल कैलेमिटी, कोई तूफान आ सकता है, इस वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो लॉस हो जाएंगे पॉपुलेशन में, दैट्स कॉल्ड एज मोर्टेलिटी. अब देखो, एन इंडिविजुअल कैन हैव डेथ बट ए पॉपुलेशन हैज डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट. वो क्या है? पहले देखो ये मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट die, number of individuals that die in population per unit time, that's called as
death rate or mortality rate. Number of individuals they die in population per unit time. That's called death rate. मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से समझ आ जाएगा इसलिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास एक लैब है, लेबोरेटरी हमारे पास. इस लेबोरेटरी में हमारे पास फ्रूट फ्लाइज है, जो ड्रोसोफिला फॉर एग्जांपल. हमारे पास इसमें फ्रूट फ्लाइज है, फ्रूट फ्लाइज क्या है, फ्रूट फ्लाइज. हमारे पास फ्रूट फ्लाइज है, एक लैब के अंदर हमारे पास फ्रूट फ्लाइज है. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज जो हमारे पास है फॉर एग्जांपल कितने हैं, 40. नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज जो हमारे पास है दे आर 40. तो 40 है फॉर एग्जांपल हमारे पास किसमें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जुलाई में, फॉर एग्जांपल जुलाई में हमारे पास है 40 नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज. क्योंकि फ्रूट फ्लाइज का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, दैट्स व्हाई एज द मंथ पर यूनिट टाइम जो है यहाँ पे मंथ में इस्तेमाल किया. तो बिगर प्लांट्स के, लार्जर प्लांट्स आई मीन एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पर यूनिट टाइम यहाँ पे ईयर. ओके, फ्रूट फ्लाइज 40 है हमारे पास एक लैब के अंदर जुलाई में. तो कुछ समय हो गया, एक महीना हो गया फॉर एग्जांपल, अब आ गया अगस्त आ गया. अगस्त में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई इट हैज रिड्यूस्ड टू 36. कितना लॉस हो गया, हमें 4 लॉस हो गया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने डाई हो गए. तो हम कैसे करेंगे, डेथ रेट कैलकुलेट. Death rate can be calculated as number of individuals that are lost, number of individuals they die in population per unit time. कितने, शाबाश, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने. अब देखो 40 था और अब 36 है, 4 मर गए. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लॉस्ट आर 4. तो टोटल हमारा साइज क्या था, ओरिजिनल था हमारे पास 40. 40 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 40 दैट मींस कितने इंडिविजुअल्स, यहाँ पे 0.1. 0.1 क्या, हाँ, डेथ रेट क्या है, इट इज ऑलवेज, डेथ रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर कैपिटा कितना लॉस हो गया. डेथ रेट इज 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई. यहाँ पे क्या है, पर मंथ हमने रखा, या पर ईयर लिखो या पर वीक लिखो, या फिर मंथ, पर मंथ क्या है. डेथ रेट विल बी नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट एज 4. यहाँ पे 40 था ओरिजिनल, तो 36 है हमारे पास, अब 4 खत्म हो गए. वो डेथ रेट बी 4 डिवाइडेड बाय टोटल साइज जो था हमारे पास 40, तो दैट मींस 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर मंथ और लॉस्ट. तो ये इसकी मोर्टेलिटी रेट है. समझा रहा है कैसे हम डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे बर्थ रेट कैलकुलेट. ओके, नाउ एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉपुलेशन का, एक और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दैट इज नंबर 5, नंबर ई. उसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज एज स्ट्रक्चर, या बोलेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज स्ट्रक्चर बोलो और एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा. एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट एजेस के. नॉर्मली 3 एज ग्रुप्स हमारे पास होते हैं. अब देखो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. एक है हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव. इन अ पॉपुलेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, 3 टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स वी हैव. वन इज प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स इन्फेंट्स. ये कौन है, दीज आर इन्फेंट्स, NFANTS. इन पर सब छोटे बच्चे हमारे पास. ओके, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव मीन्स these are mature individuals, sexually mature individuals. Okay, and another is post reproductive. वो कौन है, these are old individuals. Okay, now normally in a population we have 3 types of age groups, 3 types of individuals as per the age. We have pre-reproductive means infants, we have reproductive means mature individuals, sexually mature individuals, and we have post reproductive means old individuals. अब एक पॉपुलेशन के अंदर ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं एक पॉपुलेशन के अंदर. फर्स्ट इंडिया की बात करेंगे. इंडिया के अंदर इन्फेंट्स कितने हैं टोटल, मैच्योर इंडिविजुअल जवान कितने हैं, और बूढ़े लोग कितने हैं, बुजुर्ग लोग कितने हैं. तो इनका इनके साथ ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, इसी को हम बोलते हैं नाम एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनलिटी, कौन किसके मुकाबले में ज्यादा है, कम है. इस व्हाट कॉल एज स्ट्रक्चर एज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या लिखेंगे एज स्ट्रक्चर एज डिस्ट्रीब्यूशन में, शाबाश. इट रेफर्स टू या पहले लिखेंगे ना आप,
in a population where three types of individuals, three types of age groups, that is pre-reproductive infants, reproductive mature individuals, sexually mature individuals, and post-reproductive means old individuals. Okay, अब लिखने लीजिए proportion, proportion बोले तो percentage, proportion of individuals of different age groups, proportion of individuals of different age groups है ना, age group एक, ये age group, ये दूसरा age group, okay, proportion of individuals of different age groups in a population is called as age structure or age distribution. इसी को हम बोलते हैं नाम age structure, age distribution. हमारे पास इस age distribution को स्टडी करने के लिए सिंपलीफाइड अंदाज में age distribution को स्टडी करने के लिए हमने यूज किया है ग्राफिकल एनालिसिस, जिसको हम बोलते नाम एज पिरामिड. एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या है? देखो, एज स्ट्रक्चर को ग्राफिकल अंदाज में ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ के थ्रू दिखाना. ओके, व्हाट्स एज पिरामिड? इट इज द ग्राफिकल एनालिसिस, या वी से इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टू बी मोर प्रिसाइज, graphical representation of different age groups of a population, what we call as age pyramid. तो हम लिखेंगे graphical representation of different age groups in a population is called as age pyramid. Age pyramid is was graphical representation of different age groups in a population. This is what we call age pyramid. हमारे पास तीन किस्म के age pyramids है. Okay, we have three types. नीचे लिखो three types of age pyramids. नीचे लिखो three types of age pyramids. Three types of age pyramids. क्या क्या है हमारे पास? देख लीजिए. Three types of age pyramids. एक ऐसे, three types of age pyramids. एक ऐसे है, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? इट इज, यस, राइट, आई मीन इट इज सिंपली ट्रायंगुलर, इट्स सिंपली ट्रायंगुलर. और एक और है हमारे पास, ये बेल शेप्ड है. ओके, एक और है हमारे पास, आपको तीनों समझाऊंगा ये मसला क्या है. यहाँ देखो, तीन किस्म के एज पिरामिड है हमारे पास. दिस इज एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस. इसकी बेस ब्रॉड है. ओके, पिरामिड विद ब्रॉड बेस. ओके, ब्रॉड बेस पिरामिड, ब्रॉड बेस्ड पिरामिड, पिरामिड विद ब्रॉड बेस. ओके, हम बोलेंगे इट इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर. ये नीचे क्या हुआ? दिस इज प्री. ओके, अगर हम देखेंगे यहां नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? इट इज प्री, पी आर, प्री रिप्रोडक्टिव. ये क्या है? रिप्रोडक्टिव. ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव. इस तरह यहां प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव. अब देखो, पिरामिड विद ब्रॉड बेस ट्रायंगुलर, ये क्या है? इट इज बेल शेप्ड पिरामिड. It is bell-shaped age pyramid. ये क्या है? It is urn-shaped, vessel-like. और उल्टा करेंगे हम इसको, ये वेसल बन जाएगा, है ना, ये नोट बन पिक्चर जैसा बन जाएगा. ओके, ये ट्रायंगुलर है. तो यहां देखेंगे हम, यहां इसमें क्या, उसमें क्या, इसमें क्या. यहां देख लीजिएगा, सोच समझ के. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किनकी है यहाँ? यस, प्री रिप्रोडक्टिव. तो टाइम के साथ, टाइम गुजर जाएगा, 2 साल, 3 साल, 10 साल हो जाएंगे. व्हाट विल हैपन? ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले नॉर्मली दे विल डाई, ये खत्म हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्टिव वाले इसमें दाखिल हो जाएंगे. तो प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे जो है ये जवान हो जाएंगे. इस हिसाब से क्या हो जाएगा? क्योंकि रिप्रोडक्टिव इनकी जहां ज्यादा पॉपुलेशन है, अब देखो ना, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये पॉपुलेशन ये इसमें दाखिल हो जाएंगे. वी रिजल्ट दिस पॉपुलेशन विल शो एक्सपेंशन. तो ये एक्सपेंड हो जाएगी पॉपुलेशन.
इस पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर इसका बढ़ जाएगा। तो इसके सबसे ज्यादा है, जिस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बच्चे होंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा, यही बच्चे जो दाखिल हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव एज में, तो ये एक्सपेंड हो जाएगी पॉपुलेशन। यहां हम देखेंगे बेल शेपर्ड, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का बराबर इक्वल नंबर है ऑलमोस्ट। तो क्या हो जाएगा, वक्त के साथ ये इसमें दाखिल हो जाएंगे, ये इसमें दाखिल हो जाएंगे, तो इसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आ जाएगी, जो ये पॉपुलेशन थी उसी में रहेगी, उस अंदाज में। यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो वक्त के साथ ये इसमें दाखिल हो जाएंगे, ये जो इनकी डेथ हो जाएगी ये इसमें दाखिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव में दाखिल। विद रिजल्ट चूंकि इनका नंबर कम है तो ये डिक्लाइन हो जाएगा इनका पॉपुलेशन। मीन्स pyramid with broad base has maximum number of pre-reproductive individuals. With time, they will basically move to reproductive age. It will show expanding population. Expanding population. जिन कंट्रीज में ऐसा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वक्त के साथ पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो जाएगा, जिस तरह इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो इन तीन में से प्री रिप्रोडक्टिव के ज्यादा है, तो वक्त के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, सिंपल। तो आज भारत की पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन, चाइना की 1.43। बाय 2030 इंडिया विल बेसिकली सरप्लस द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। 2030 में हमारा जो देश है ये बन जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री दुनिया के अंदर। चाइना को करेगा ओवरकम। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ऐसे जब ब्रॉड बेस, जब सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो जाएगा। तो बेल शेपर्ड में क्या है, बेल शेपर्ड में इन दोनों का नंबर बराबर है, तो ज्यादा तब्दीली नहीं आ जाएगी, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन, ये स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी हर वक्त के साथ, इसमें कोई तब्दीली आने वाली। डेवलप्ड कंट्रीज की बात है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में यही हालत है, रिप्रोडक्टिव बराबर है। तो अर्न शेपर्ड जो है, अर्न शेपर्ड इसमें क्या है, सबसे कम है, दिस व्हाट कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव, आई मीन प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो वक्त के साथ ये दाखिल हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव में, तो इनका नंबर वहां पे भी कम रहेगा, विद रिजल्ट डिक्लाइन हो जाएगा इनका पॉपुलेशन। दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ये होता है जिन कंट्रीज में पोर न्यूट्रिशन है, पोर न्यूट्रिशन, जिस तरह अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है वहां पोर न्यूट्रिशन है उनको, तो दे शो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की अल्टीमेटली कम हो जाएगा। So this is what we call as per. This is all about population attributes and population. Okay? Hope you understood very well. तो इन चीजों को रिवाइज करो साथ साथ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।